Good morning, everyone. So, today we are going to start with the first step under pre fertilization events in case of human reproduction, that is gametogenesis. As you can understand from the word, genesis means formation and gameto means gametes. So, gametogenesis in case of human, it is formation of gametes in the gonads. गोनैड्स का मतलब क्या होता है? That organ where gametes they are produced, and two types of gonads are testes and ovaries. Okay, and two main types of gametogenesis which is taking place in case of human reproduction. One is spermatogenesis, that is genesis again formation of something, और क्या चीज़ बन रही है? स्पर्मेटो. So formation of sperm is known as spermatogenesis, that is in case of males, and formation of oo. Oo stands for ovum or egg. So formation of an egg or an ovum in the ovary is known as oogenesis. So today first we'll start with the first type of gametogenesis, that is spermatogenesis, and this procedure takes place in males. So the process of formation of sperms are at times also known as spermatozoa. Zoa, it comes from the word that it is motile. ठीक है, sperms they are motile because of the presence of tail. So spermatozoa and sperm means the same. So कल भी बताया था that the location or site for formation of sperm is seminiferous tubules which are present in the testes. I hope you remember this. So अगर क्वेश्चन आता है what is the site of spermatogenesis or what is the site of formation of sperm, we are not going to write testes. So answer will be seminiferous tubules. Okay. So there are different stages of spermatogenesis, and we can divide them into two main types, two main stages. First is formation of spermatids, जो main event है, and then how spermatids they finally get converted into sperm, procedure known as spermiogenesis. Okay, but this one is much more clear. Okay, so as you can see here, this is a very good sequence of spermatogenesis. ठीक है, तो इसको अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द सीक्वेंस, राइट डाउन द स्कीम फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये डायग्राम बनेगा. इसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाया है सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. सो spermatogenesis is formation of sperm, and we know that formation of any gamete or any cell is from some mother cell. यही किया था हमने in case of plants. So that mother cell in case of spermatogenesis, that is in case of male, is spermatogonia. तो स्पर्मेटोगोनिया को आप किससे कंपेयर कर सकते हो? दिस कैन बी कंपेयर टू द मेगास्पोर और दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. कंपैरिजन करने का फ़ायदा ये है कि यू कैन ईज़िली मेक आउट द डिफरेंसेस एज वेल एज आपको चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लर्न हो जाएंगी. सो वी हैव दिस मदर सेल और द प्रोजेनिटर सेल. प्रोजेनिटर का मतलब फिर से वही जहाँ से स्टार्ट होना है, एंड दीज आर स्पर्मेटोगोनिया. अब मैंने इसको मदर सेल इसलिए बोला सो दैट यू कैन रिमेंबर द प्लॉइडी. सो प्लॉइडी ऑफ अ मदर सेल इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड. एज यू कैन सी हेयर, ये पहले 2 में डिवाइड हुए, देन ईच वन इज़ डिवाइडिंग इनटू 4. सो दैट मीन्स यहाँ कौन सा प्रोसीजर फॉलो हुआ है? दिस प्रोसीजर इज़ ओनली माइटोसिस. अब यहाँ माइटोसिस क्यों हुआ? क्योंकि स्पर्म्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. उनका जो नंबर होता है दैट इज़ क्वाइट लार्ज, अबाउट 200 to 300 million in one type
एक टाइम में जो रिलीज़ होता है। सो इतने ज़्यादा स्पर्म्स अगर बनने हैं तो दैट मीन्स जो मदर सेल है फर्स्ट इटसेल्फ इट हैज़ टू अंडरगो मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो इस तरफ हम लिखेंगे द नेम ऑफ द सेल, इस तरफ लिखेंगे कि वो सेल किस फेज़ में है। हर सेल के अंदर उसकी प्लॉइडी ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फेज़, मल्टीप्लिकेटिव फेज़, जहाँ स्पर्मेटोगोनिया it will undergo mitosis and give rise to number of spermatogonias, ठीक है। then comes the growth phase, after multiplicative growth phase, as you can see the difference in the size। अगर ये स्पर्मेटोगोनिया है तो नेक्स्ट जो स्टेज आ रही है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया जब साइज़ में थोड़े इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऑब्वियसली उनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो जाएगा, देन दैट इज़ नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो दिस फेज़ इज़ नोन एज ग्रोथ फेज़, ठीक है। अगर आपको याद हो, इफ़ आई टोल्ड यू दैट व्हेन एंड व्हाई अ सेल डिसाइड्स टू डिवाइड, इफ़ यू रिमेंबर, कब ये सेल को पता चलता है कि उसे अब डिवाइड हो जाना चाहिए? तो आंसर इज़ व्हेन द न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट डेविएट्स फ्रॉम 1:1। तो इसीलिए इसका साइज़ इंक्रीज़ होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इसका साइटोप्लाज्म अगर इंक्रीज़ होगा बाय एब्जॉर्बिंग द फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, तो अब साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, न्यूक्लियस उतने का उतना ही है। तो अब इस सेल के पास क्या ऑप्शन बचा? डिवीज़न, ठीक है। ये इतना बीच में एक्सप्लेनेशन इसीलिए है सो दैट यू कैन ईजिली रिकॉल इट। सो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, तो फेज इज़ मल्टीप्लिकेटिव, दे आर डिप्लॉयड, दे विल जस्ट इंक्रीज इन द साइज, सो फेज इज़ ग्रोथ फेज, एंड द न्यू सेल फॉर्म इज़ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, स्टिल द प्लॉइडी इज़ डिप्लॉयड, ओके। देन कम्स फर्स्ट मियोसिस एंड दिस मियोसिस इज़ इक्वल। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डायग्राम बनाते टाइम इसका साइज़ इससे छोटा होना चाहिए और इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट इसके हाफ होना चाहिए, ठीक है। सो these two cells now they are known as secondary spermatocytes, and what is the ploidy? It is n। क्यों? क्योंकि meiosis 1 हो गया and meiosis 1 is a reductional division। after meiosis 1 we know the second phase is meiosis 2। so secondary, each of the secondary spermatocyte it will undergo meiosis 2, again this meiosis 2 is equal। so result from one secondary spermatocyte, that is haploid, it is giving two spermatids of same size। तो similarly जो second this secondary spermatocyte है वो भी 4 spermatids देगा, ठीक है। so that means from one primary spermatocyte how many spermatids are formed? 4। तो ये तो हो गया एक फेज़, जो भी बताया था कि 2 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। नाउ द सेकेंड फेज इज़, क्योंकि प्रोसीजर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वो तो बने नहीं अभी। सो लास्ट स्टेप इज़ व्हेन दीज स्पर्मेटिड्स, अभी ये सर्कुलर सेल जैसे हैं, देन दे अंडरगो सर्टन रीअरेंजमेंट्स एंड टेक द टिपिकल शेप ऑफ स्पर्म्स। सो इस प्रोसीजर को हम क्या बोल देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, डिफ्रेंसिएशन और चेंज इन द स्पर्मेटिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। और ये जो फेज़ है मियोसिस 1 and 2, इसको सिंपली मियोटिक फेज। इज इट क्लियर? आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिव्यू। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस by through multiplicative phase to increase the number। Each of the spermatogonia has the same fate। Each spermatogonia will increase in size and behave as primary spermatocyte, ploidy is 2n, this is growth phase। Then primary spermatocyte undergo meiosis 1, that is equal, to form 2 secondary spermatocytes,
Secondary spermatocytes undergo meiosis II, again equal formation of spermatids, total 4 spermatids from one primary spermatocyte, and this complete phase starting from primary spermatocyte till spermatid is meiotic phase. And last में when spermatids they get converted into sperm, this procedure is known as spermiogenesis. ठीक है, अब जब ये sperms बन जाएंगे, these sperms they will get embedded in the Sertoli cells. ये Sertoli cells कहाँ प्रेजेंट हैं? सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही, और ये स्पर्म्स तब तक Sertoli cells के अंदर अपने हेड को एम्बेडेड घुसा के रखेंगे जब तक कि ये रिलीज़ नहीं हो जाते. सो दैट मीन्स sperms, why they are embedded in Sertoli cells? Because these Sertoli cells are also known as the nurse cells, because they provide the nourishment to the sperms. और लास्ट में जब ये sperms they get released, then that process is known as spermiation. Okay, so as you can see here now, ये देखो, ये है spermatid जो एक नॉर्मल सेल जैसा दिख रहा है. Then this spermatid undergoes certain changes and finally form the shape of a sperm. तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, सो अगेन ये सब हो गया, कितने बनेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस डायग्राम जो मैंने कल किया. दिस इज़ द टिपिकल टीएस ऑफ अ सेमनिफरस ट्यूब्यूल. तो अगर एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल को आप कट करते हो तो उसके अंदर एक तो बाउंड्री होएगी, ठीक है, बाहर उसके क्या होंगे? लेडिक सेल्स, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है. अंदर उसके क्या होंगे? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया. नाउ दिस इज़ अ स्पर्मेटोगोनिया, दिस वन. दिस स्पर्मेटोगोनिया चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, स्पर्मेटोगोनिया इट गेट चेंज्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने टोटल 4 स्पर्मेटिड्स. देन ईच स्पर्मेटिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पर्म, एंड दीज स्पर्म्स, नाउ दिस जो सेंटर में ये बड़ा सा बना रखा है, दिस इज़ द सर्टोली सेल, ठीक है, और ये बीच में इसका न्यूक्लियस. तो ये सारे के सारे स्पर्म्स अपने हेड को इस सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड करके रखेंगे ताकि उसमें से नरिशमेंट ले पाए. ओके, एंड व्हेन देयर विल बी इजैकुलेशन, दैट मीन्स रिलीज ऑफ सीमन, तो ये जो स्पर्म्स हैं दे गेट मूव आउट फ्रॉम द सर्टोली सेल, ठीक है, एंड दे एंटर इनटू द रेटी टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, एपिडिडमस, डेफरेंस, एंड वो सारा डक्ट वाला सिस्टम. दैट प्रोसीजर ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन. ओके, सो that release of sperm from seminiferous tubule is known as spermiation. Clear? So next is, what is the role of hormones in spermatogenesis? इसका कुछ portion we have done in class 11th also. The main role is played by hypothalamus. I hope you remember it is also known as master of master gland. So master gland is pituitary. So hypothalamus send messages to the pituitary of releasing या inhibiting, ठीक है. Then pituitary will secrete 2 types of gonadotrophin, LH and FSH. तो यहाँ पर क्या होगा? GnRH, gonadotrophin releasing hormone. हाइपोथैलेमस इसको क्या देगा? gonadotrophin releasing hormone, कि gonadotrophin को रिलीज़ कराओ. तो पिट्यूटरी 2 टाइप के गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज़ करेगा, वन इज़ LH एंड वन इज़ FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लेडिक सेल पे इफ़ेक्ट करते हैं. अब ये लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट थे? 2-3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल के सेंटर में जो इंटरस्टिशियल स्पेस बचती है वहाँ पे. तो लेडिक सेल पे कौन इफेक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. फॉर व्हाट? So that Leydig cell can perform its function, that is secretion of androgen. Androgen मतलब testosterone. That testosterone is used for this procedure of spermatogenesis.
जेनेसिस, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो FSH है वो किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके एक्ट करता है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पड़े ड्यूटेनाइजिंग और दिस लेडिक सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। सो FSH विल इफेक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, act on the Sertoli cells and stimulate the secretion of certain factors that will help in spermiogenesis. What is spermiogenesis? Conversion of spermatid into cells. Okay. So last topic for today is defining structure of the sperm. This is the cell diagram of the cell. So a sperm can be divided into three main parts. Upper portion known as head, then video portion here also, but it will include nuclear rod, that is neck. So better है इसको चार में divide करो, head, small neck, then middle piece, ये पूरा पूरा हो गया, and then this head is basically nucleus, ठीक है। nucleus के आने पर क्या होगा, this nucleus सेल है तो सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे सबसे ऊपर जो टिप जैसा है दैट इज़ द एक्रोसोम। नाउ दिस एक्रोसोम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज, जो एक सेल की गोल्गी बॉडीज होती है, एंड वी नो दैट इन गोल्गी बॉडीज देयर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स। फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज पैकेजिंग एंड रिलीजिंग ऑफ प्रोटीन्स ना। सो इस गोल्गी बॉडी में, इस एक्रोसोम में बेसिकली ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाइड्रोलिटिक हैं। दे हेल्प दिस स्पर्म टू ब्रेक द मेम्ब्रेन्स ऑफ एग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज़ 23 क्रोमोसोम। फिर है ये छोटी सी नेक। अब इस नेक में इफ़ यू सी क्लियरली तो ये सेंटर में क्या है, एक सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेंट्रियोल से ही एक्सेल फिलामेंट्स निकलती हैं। आपकी बुक में यहाँ एक ही सेंट्रियोल दिखाया जाता है, बट जनरली यहाँ 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। देन कम्स द मिडल पीस। अब ये मिडल पीस में क्या है, थोड़ा बहुत जो साइटोप्लाज्म बच गया, प्लस स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वी नो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। तो ये जो मिडल पीस है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट विल प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द स्पर्म फॉर इट्स मूवमेंट। बट मूवमेंट होनी किसकी वजह से है, टेल। सो दिस टेल इज़ अ लॉन्ग एक्सियल फिलामेंट that is starting from the centriole. Okay, so this is the structure of a human sperm. This is another diagram, जो पीछे वाला डायग्राम है कि उसकी टेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है स्पायरली अरेंज्ड, फिर उसका न्यूक्लियस पोर्शन है और फिर उसका
एक्रोसोम है. Okay, so some of the information regarding this: sperm is about 60.06 mm or 60 micron long. स्पर्म इज़ एनवेलप्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके 3 मेन पार्ट्स हैं: हेड, मिडल पीस एंड टेल. ओके, नाउ दीज आर द फंक्शंस. ये मैंने ऑलरेडी बता दिए. हेड का शेप ओवल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है. न्यूक्लियस गोल्गी बॉडी से बना होता है, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं. ठीक है. मिडल पीस में बेसिकली एक्सियल फिलामेंट्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है. टेल रीजन में सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है एंड दिस टेल हेल्प्स द स्पर्म टू मूव in the fluid medium as well as in the female genital tract. Okay, so last this is somewhat extra information. The first one is okay, that during a single ejaculation, जब एक बार सीमेन रिलीज होता है मेल में, तो उस एक इजैकुलेशन में देयर आर अबाउट 200 to 300 million sperms. ठीक है. अब whether these sperms they are able to reach up to the egg and finally they will be the procedure of fertilization, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? स्पर्म की दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका शेप और साइज़ और दूसरा उसका मोटिलिटी. सो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी या फर्टाइल या एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस होने में अ मेल शुड हैव एटलीस्ट 60% स्पर्म्स शुड बी फर्टाइल. उनका शेप साइज नॉर्मल होना चाहिए एंड 40% ऑफ द स्पर्म्स आउट ऑफ दिस शुड बी विगरसली मोटाइल, कि उनकी जो स्पीड है इट शुड बी वेरी हाई. ओनली देन इट विल बी एबल टू रीच अप इनटू द फीमेल ट्रैक. ओके, so this is all about today's topic, and tomorrow we'll take up in